Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम याद दिला दें कि हम इस कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार अम्बरीश, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic markets jump 1.7% during the week. RBI to prepare white list of legal apps, center to ensure that only legal loan apps are hosted on App Store. And US stocks registered their first weekly gain in 4 weeks. घरेलू बाजारों में इस सप्ताह 1.7% का उछाल दर्ज किया गया। रिजर्व बैंक ऐप्स पर श्वेत पत्र तैयार करेगा। केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि केवल वैध ऋण ऐप को ही डाउनलोड करने की सुविधा ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो। और अमेरिकी शेयर बाजारों में 4 सप्ताह के दौरान पहली साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। Domestic equity markets jumped over 1.5% this week on continuous foreign fund inflows and a positive global Q. The Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 990 points or 1.7% during the week to close at 59,793 yesterday after crossing the 60,000 level earlier in Friday's session. The Nifty at the National Stock Exchange gained 294 points or 1.7% during the week to close at 17,833. At the foreign exchange markets, the rupee appreciated 8 paise during the week to end at 79.63 yesterday. We've got our first caller online with us from Bhopal. Shankar, a warm welcome to you. Please go ahead and ask your question. Thank you, sir. Good evening, Sharadji. Good evening, Market Mantra team. Good evening. Sir, my question is about inflation, which is ballooning in USA and many European countries, including UK, EU countries and UK. Whereas in India, it is under very much control. Is it because the inflation is because of the injection of extra money, boost money into the economy by these countries during pandemic? Especially in America, because they don't have much effect of Russian gas and oil effect. Whereas in Europe, it is also ballooning because they also injected, but not to that extent. India में पैसे दिए गए थे, पर हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो आप इसको क्या कारण देखते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन इतना नहीं भागा जितना यूरोप और अमेरिका में तेजी से चला और हम इससे अछूते क्यों रहे, ये मैं जानना चाहता हूँ। Shankar, a very good question, and I think the country wants to know that why we are so resilient and what makes us special, shall I say, in the global perspective. Yes, you're right. The kind of money which was injected by the United States and a lot of European countries, I think they are now paying the price because there's more money chasing lesser amount of goods. That is one reason.
crude oil prices which affected across the world, including India for that matter. That is the second reason. And the main reason is that, you know, there's a gas war going on right now. अगर मैं यूरोप की बात करूं शंकर, तो यूरोप में गैस वॉर चल रहा है और आपको मैं आज ही सुबह देख रहा था कहीं पर, इनफैक्ट इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो राजेश, के एक पंप है लंदन में जिसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल 70,000 पाउंड आता था और उसका पिछले महीने उतने ही यूसेज पे बिल 4,20,000 पाउंड का आया है। तो करीब करीब 6 से 7 गुना उछाल वहां पर एनर्जी प्राइसेस में आया है। हमारे यहां पर भारत में भारतीय सरकार ने उस समय काफी आलोचक जो होते हैं वो आलोचना कर रहे थे कि साहब यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया, यहां पर ज्यादातर मॉनेटरी पैकेज था, वो लोन्स ज्यादा दिए गए वगैरह वगैरह। और आज हमें उसका फायदा हमको दिखाई दे रहा है कि लोगों के जेब में सीधा पैसा ना डाल के हमने वो सुविधा दी यहां पर, जिससे कि लोग दोबारा से इकोनॉमी को पटरी पर ला सकें, अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। तो उसका हमें फायदा मिल रहा है। दूसरा, हमें ये शंकर ये भी ध्यान रखना चाहिए, यू नो, वी बीन एबल टू मैनेज सम इकोनॉमिक ऑयल डील विथ रशिया। हमें जो ऑयल, जो उन कंट्रीज को ऑयल मिल रहा है जो हमें मिल रहा है, उसमें फर्क है, करीब करीब $25 से $30 हमें सस्ता मिल रहा है। और आप ये जानते होंगे भारत में और ज्यादातर विश्व में इन्फ्लेशन का जो कारण था वो क्रूड ऑयल था और हमको थोड़ा सस्ता मिला उससे। प्लस जो रिजर्व बैंक ने कदम उठाए हैं, भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, मिलके इन टैंडम कदम उठाए हैं, उससे हमारी इकोनॉमी पे हुआ है। बिल्कुल आपने बिल्कुल मुख्य कारण वही है जो आप ठीक उसको भांप रहे हैं कि उन्होंने पैसा इतना डाल दिया इकोनॉमी में कि बैलेंस शीट इतनी बड़ी हो गई कि सामान उतना ही था और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए और उल्टा सामान कम हो गया और पैसा ज्यादा फ्लोट करने लगा। तो इन्फ्लेशन तो आप जानते हैं, अगर नोट छापे जाएंगे, धड़ाधड़ नोट छापे जाएंगे, अमेरिका ने $60 ट्रिलियन से भी ज्यादा इंजेक्ट किया है, तो नेचुरल बात है कि वो इन्फ्लेशन को हवा देगा ही देगा। जी। और मध्य प्रदेश में बैतूल से हमारे श्रोता वीरेंद्र जी लाइन पे हैं। वीरेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार सर। जी सर मेरा कोहली जी से ये क्वेश्चन था कि मेरा सर अभी 32 इयर्स का एज है जी, और मेरी सर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी कैसे रहना चाहिए सर, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। थैंक यू सर। बेतुल जी, बहुत उत्तम विचार है। 32 साल की आयु है, आप बहुत कम उम्र के हैं और अभी अपनी जिंदगी को आपने सेटअप किया है और आगे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, मिडिल एज प्लानिंग आप करने लगे हैं। देखिए, आप अगर स्टॉक मार्केट्स में रुचि रखते हैं और स्टॉक मार्केट्स में आपने कभी सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आएं। शुरू में आप ज्यादा डेट म्यूचुअल फंड्स का कंपोनेंट रखें, उसके बाद आप हाइब्रिड में जाएं, धीरे धीरे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर बढ़ाएं और साल 2 साल में जब आप थोड़ा स्टॉक मार्केट को आप पहले वॉच करें। होता क्या है, अम्बरीश, राजेश के लोग स्टॉक मार्केट में सीधा छलांग लगा देते हैं। और देखिए, आप कोई स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें भी जब आप छलांग मारने लगते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो पढ़ते हैं उसकी गहराई कहां लिखी हुई। अगर नहीं लिखी होती तो उसमें किसी लंबे आदमी को या डंडा डाल के देखते हैं कि असल में ये मेरी हाइट से ज्यादा गहरा है। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट में चलता है। मुझे लगता है पहले उसको वॉच करना चाहिए, पहले अच्छे से देखना चाहिए। 2-4 लोग पहले पूल में कूद जाएं, उनकी ऊंचाई देखिए, आपसे लंबे हैं, छोटे हैं, वो नहीं डूबे, मैं भी नहीं डूबूंगा, तो आप उसको वॉच करें। जब आपको करीब 1 से 2 साल बीत जाए, उसके बाद आप सिलेक्टिव बेसिस पे किसी एक्सपर्ट की निगरानी में आप धीरे धीरे पैसा लगाइए। तो मैं आपको सलाह दूंगा बेतुल जी, क्योंकि आप मिडिल एज की और रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आपके को बड़ा खर्च हो, मकान खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, घर में कोई शादी ब्याह वगैरह हो, किसी की पढ़ाई का खर्चा हो, तो इस सबको देखते हुए ऐसा निवेश करिए जो कुछ तो बहुत लॉन्ग टर्म हो, जो आपके रिटायरमेंट पे काम आए। कुछ पैसा ऐसा हो जो थोड़ा एक्टिव रहे, मतलब वो साल 2 साल में चर्न होता रहे और आपको उस पर रिटर्न आता रहे। अब ये थोड़ा सा बहुत विस्तृत डिस्कशन हो जाता है। इसके लिए बेतुल जी हमें आपकी रिस्क एपेटाइट देखनी पड़ेगी, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, क्या आप, ये तो मैं अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहा हूं कि आप शायद रिटायरमेंट का जानना चाहते हैं, मिडिल एज का। तो आप इस सवाल को मैं आपको सलाह ये दूंगा वीरेंद्र जी कि आप इस सवाल को टुकड़ों में 3-4 मार्केट मंत्रा के कैप्सूल्स में पूछेंगे तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। अकेला मैं आप ही को दूंगा तो बाकी का कार्यक्रम इसी में बीत जाएगा, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। मोटा मैंने आपको बता दिया, आगे जरूर जुड़िएगा याद से। बट शरद, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जरूरी है। और लोग, मैंने पिछली बार एक बात कही थी राजेश, अगर आपको याद है, कि लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर बन के आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं शेयर मार्केट में। देखते हैं फायदा हो गया, हमने तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 3 महीने में फायदा हो गया, उसको बेच के ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, अपना बिजनेस छोड़ के उस पर से ध्यान हटा के इसी में लग जाते हैं और बाद में फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी और पेशेंस, एंड्योरेंस बहुत चाहिए मार्केट में, बहुत सब्र चाहिए। इसीलिए मैंने इनको सलाह दिया वीरेंद्र जी को कि आप लगातार जुड़ते रहिएगा वीरेंद्र जी,
और मुझे उम्मीद है 3-4 एपिसोड्स में आप जब लगातार कॉल करेंगे तो आपके सारे प्रश्नों को हम गहराई तक जवाब दें। समय की सीमा की वजह से, औरों को मौका देने की वजह से मैं उसको और ज्यादा खोल के आपको अभी नहीं बताऊंगा, और हमें ये भी तो उम्मीद रहती है ना कि आप दोबारा जुड़े हमारे साथ, तो इसलिए भी थोड़ा सा रोक लेना चाहिए। जी, Joining us from Mumbai is Ratnakar. We welcome you, Ratnakar. Hello? Can you hear us, Ratnakar? I think we lost touch with Ratnakar. We move on to Noida now and say hello to Mr. SPS Jain. Warm welcome, Mr. Jain. Please ask your question. हाँ, नमस्कार जी। कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जैन सर। अभी भी मार्केट हार्मोनिक मोशन में चल रहा है, ऊपर नीचे जी। लास्ट वीक में भी आपने बताया था कि वॉलेटिलिटी रहेगी जी। अंडरटोन पॉजिटिव आपने बताया था, वो कहीं ज्यादा दिख नहीं रही है। तो ऐसे में आप सदा कहते रहे हैं कि प्रॉफिट इन बैंक इज बेटर देन इन शेयर रेट जी। तो कुछ जहां हमारे टारगेटेड रिटर्न्स करीब करीब आ गए हैं जी, तो उनको हार्वेस्टिंग कर ली जाए, क्या आपका सलाह है? जी हाँ, बिल्कुल जैन साहब, अगर आप मेरा पिछले हफ्ते का वक्तव्य देखें जो मैंने इसी कार्यक्रम में बोला था, तो मैंने आपको कहा था अंडरटोन बुलिश है, और मैं आज भी ये कहता हूं। और अभी आपने हमारे जो दोनों माननीय एंकर्स हैं उन्होंने जो खबर पड़ी 1.7% मार्केट पिछले हफ्ते से चढ़ा है, तो मैंने अंडरटोन बुलिश कही और बाकायदा मार्केट ने बुलिश करके दिखाया, उस पे मार्केट में बढ़ोतरी हुई है। रसाकशी चल रही है जैन साहब, कुछ फोर्सेस हैं जो मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा पॉइंट है, रिसेशन है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और दूसरी तरफ शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, इंडिया की खासकर रिकवरी है, इंडिया की डीकपलिंग हो रही है बाकी की वर्ल्ड मार्केट से। कभी कभी इंडिया अपनी चाल चलता है, जो कि अच्छी बात है, मार्केट की मैच्योरिटी की पहचान है। और एफपीआईज ने भी वापसी करी है, बहुत महीनों बाद उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर फिर पैसा लगाया है। बिल्कुल रसाकशी चल रहा है। और देखिए जैन साहब, आपने पूछा हार्वेस्टिंग करें, तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट को बुक करके चलिए, आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं मार्केट में। जब जब करेक्शन आए तो आप री एंटर करिए, मार्केट में बहुत सब्र चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं जैन साहब, कोई भी आज तक ऐसा व्यक्ति मार्केट में नहीं हुआ, बर्कशायर हैथवे के ओनर से लेके, और जिसने मार्केट में सदा पैसा कमाया हो या जिसने सदा गवाया हो। तो अगर आप कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी चला भी जाता है, और जाता है तो फिर वापस भी उससे ज्यादा भी आ जाता है। तो इसलिए बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके चलें और करेक्शंस की वेट करें, और जब जब करेक्शन आए आप थोड़ा थोड़ा करके वापस इन्वेस्ट करते रहें जैन साहब। और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर जी लाइन पे हैं। रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि जो अभी बीच में ये हो गया था कि आरबीआई डिजिटल पेमेंट पर चार्जेस लगाएगी, ये सही है क्या, और कितना चार्जेस हो सकता है? और दूसरा सवाल है कि ये जो मार्केट अभी आरबीआई ने रेट बढ़ाने के बाद भी चढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? मार्केट तो डाउन आता है आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने के बाद जी, लेकिन अभी 60,000 भी पार कर दिया, तो यह ऐसे ही बढ़ता जाएगा क्या? चलिए रत्नाकर जी, आपने बोला डिजिटल चार्जेस, आरबीआई का कोई अभी ऐसा विचार नहीं है, अफवाहें उड़ती रहती हैं डिजिटल पेमेंट्स पर। डिजिटल पेमेंट तो रिकॉर्ड छूने की है, और टारगेट तो भारत सरकार का 10 लाख करोड़ प्रति माह का डिजिटल ट्रांजैक्शंस का है। हम 6-7 लाख करोड़ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बहुत तेज रफ्तार से भारत में डिजिटल पेमेंट्स रिकॉर्ड, दुनिया भर का एक रिकॉर्ड है। दूसरा, आप मुझे लगता है रत्नाकर जी, आप बियर तो है नहीं, बियर बोलते हैं जिनको हम मंदड़िया बोलते हैं, जो मार्केट के नीचे गिरने के इंतजार करते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। मार्केट में रत्नाकर जी क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या 10 करोड़ पार कर चुकी है, और ये पिछले 2-2.5 साल में ये करिश्मा हुआ है, ये चमत्कार हुआ है कि एकदम से इतने लोग शेयर मार्केट। तो रिटेल इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। उसके अलावा रत्नाकर जी, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमसे रुसवा हो गए थे, उन्होंने वापस यहां पर रुख किया है। हमारे जो विदेशी मेहमान थे वो वापस आए हैं, उन्होंने पैसा फिर लगाया है दोबारा। और जिस प्रकार से मार्केट, और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था रत्नाकर जी बाकी की दुनिया की अर्थव्यवस्था से इस समय एक चमकता सितारा दिखाई दे रही है, क्योंकि हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एनालिसिस करते हैं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऊपर फिनलैंड से लेकर अफ्रीका तक। तो मैं आपको ये बड़ी कन्विंसिंगली कह सकता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक ब्राइट स्टार की तरह है। और भारत ने डीकपलिंग, अभी मैंने बात करी थी कि भारतीय स्टॉक मार्केट्स अब पुच्छल नहीं बनते हैं, पीछे पीछे नहीं चल रहे। बीच बीच में ऐसे कई दिन होते हैं जब भारत की शेयर मार्केट अपनी चाल चलती है, और वो अपनी चलती है, ये मैच्योरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये तो खुश होने की बात है रत्नाकर जी। आप अगर बियर नहीं है
और आप बुल हैं, मतलब आप मार्केट की तेजी से कमाते हैं, तो अगर 60,000 पहुंच रहा है तो रत्नाकर जी मैं तो समझ रहा था आप जोश में बोलेंगे, पर आपकी आवाज में थोड़ी सी उदासी दिख रही है, बताइएगा हमें ऐसा क्यों है जी। We are going in for a short commercial break and be back with you very soon. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ शरद कोहली जी, और इस समय हमारे साथ मुंबई से हमारे श्रोता शंकर मौजूद हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ कि वय बंधन स्कीम है जी, पेंशन स्कीम जी, उसके बारे में बता सकते क्या है? देखिए, वय वंदना तो जहां तक मेरा ठीक अनुमान लग रहा है, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्पेशल डिपॉजिट रेट्स जो भारत सरकार ने निकाले हैं उससे संबंधित है, जिसमें आप 15 लाख तक जमा कर सकते हैं। शंकर जी, उसमें आपको जो ब्याज की दर है वो एक आम दूसरे व्यक्ति से ज्यादा मिलती है, करीब 0.5 से 0.75% मैंने देखा है बैंक उसमें फालतू दे रहे हैं, तो आप उसका लाभ उठाइए। उसको बैंक में, अगर आप बैंकों में फिक्स डिपॉजिट्स रखना पसंद करते हैं तो आप उसमें बैंक में अपना 15 लाख तक डिपॉजिट करा सकते हैं और उसका ज्यादा इंटरेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं जी। Bharat Bhushan joins us from Gurugram. A warm welcome. Please ask your question. Good evening. Good evening. I have a pension, life stage pension product from ICICI Prudential Life, and this has a rebate of section 1010D. Yeah. So there is some confusion regarding 1010D and what 1010A is. I think they've given me a rebate for 1010D. Yeah. What is exactly 1010D section? Yeah. Number two, if I commute 1/3 of this pension amount which is due for maturity, yeah, I understand it will not be taxed, 1/3. Yeah. And 2/3 I'll be drawing the pension. Now, supposing I don't commute any proportion and want to draw full pension from the entire amount, so will there be any tax implication? Well, Mr. Bharat Bhushan, 1010D, first of all, is an exemption given for schemes where the premium payment is less than 10% of the sum assured. The maturity amount of that insurance contract is totally exempt from tax. So Section 10 talks about exemption of incomes, and this is one of the categories of exempt income. That is when a policy matures and the premium is less than 10%. Then you get full exemption. As for you are right, when the pension is commuted, it is exempt as per the scheme. I'm not sure which scheme ICICI Prudential you have subscribed to, but in principle, commuted pension is usually exempt, and pension which you are taking on a regular basis, it gets taxed in income from other sources. So that is the rule. You'll have to check your scheme, Mr. Bharat Bhushan, that whether the scheme provides for full commutation. If full commutation is allowed, then I'm sure if they are exempting you 1/3, they will exempt the full amount as well. But principally, 1010D is about maturity proceeds of insurance contract, where the premium payment is less than 10% per annum. At the time of maturity, you get full exemption of the maturity amount. You need not pay any tax, although you have to reflect it in your return of income as exempt income. और दिल्ली से हमारे श्रोता सुनील लाइन पे मौजूद हैं। सुनील नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, कोहली साहब को नमस्कार, पूरी मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार सर, ये अभी डिफेंस सेक्टर के जो शेयर हैं काफी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, और अभी उनका आगे क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? सेकंड सर, थोड़ा ऑयल और स्टील सेक्टर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। जी, देखिए सुनील जी, जो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स, मैं तो लगातार बोलता रहा हूं मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कि डिफेंस सेक्टर हमारा कल का सेक्टर है और इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो भारत में चल रहा है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी,
और हम तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे अव्वल नंबर का अगर सेक्टर देखें तो वो डिफेंस है। अभी अभी हमने INS विक्रांत का आपने देखा, भारत में बना पहला युद्धपोत उसको लाया गया। और उसके अलावा आज रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, भारत के बनाए हुए हवाई जहाज हैं जो कि बाहर, जो लड़ाकू विमान है वो बाहर डिमांड में है। तो डिफेंस सेक्टर का मुझे भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है सुनील जी, अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करें। दूसरा आपने ऑयल का पूछा। ऑयल तो देखिए जिस प्रकार ऑयल की कीमतें ऊपर गई हैं, जितनी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल में दो तरीके की कंपनीज होती है, एक ऑयल एक्सप्लोरेशन में होती है, एक ऑयल मार्केटिंग में होती है। तो उसकी वजह से ऑयल की डिमांड अभी फिलहाल तो बढ़ेगी, पर जैसे जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ेगा तो फिर आगे आने वाले 3 से 4 साल बाद मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऑयल की डिमांड आपको वैश्विक स्तर पर घटती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए ऑयल का फिलहाल आप तेजी में ले सकते हैं आप 2-3 साल के लिए, पर उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा। स्टील सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। स्टील की डिमांड भी आगे आने वाले समय में बहुत रहने वाली है। जिस प्रकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और भी जितने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जहां स्टील की डिमांड होती है, खासकर भारत जैसे देश में, इमर्जिंग इकोनॉमी में, डेवलपिंग कंट्री में इन चीजों की बहुत जरूरत है। उसमें भी आप लंबी अवधि का सुनील जी नजरिया रखें, शॉर्ट टर्म के लिए इसको ना करें। आप कम से कम 3 से 5 साल का रखें, आपको इसमें अवश्य लाभ होगा। From Delhi, we are joined in by Samar Yadav. Samar, we welcome you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं समर यादव दिल्ली से जी। सर मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ, जैसे मेटल सेक्टर है, मेटल स्क्रैप सेक्टर अभी डाउन जा रहा है, तो आगे कब तक संभावना है सर कि इसके रेट अप हो सकते हैं, कुछ बढ़ेंगे मेटल इंडस्ट्री में, जैसे कॉपर हो गया, स्टील हो गया और एल्युमिनियम हो गया सर, ब्रास हो गया, इसके बारे में जरा बताएंगे आप मुझे सर? थैंक यू। समर जी, अभी आपसे पहले जो श्रोता थे, आप शायद उस टाइम कॉल होल्ड पे होंगे, आपसे पहले जो श्रोता थे उनसे इसी मुद्दे पर वार्तालाप चल रहा था। मैं उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूं। मेटल सेक्टर का मुझे सुनील जी, समर जी, बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर आता है, क्योंकि भारत जैसी इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल की आपने देखा अभी भी सेल के रिकॉर्ड आंकड़े आए, उसमें रिकॉर्ड बढ़त देखी गई। तो मुझे आने वाले समय में अफोर्डेबल गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनका प्रचलन और बढ़ेगा। तो जहां जहां भी स्टील और मेटल का प्रयोग होता है, उन सेक्टर्स की डिमांड देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि मेटल सेक्टर में, और जितने भी आपने बेस मेटल्स के नाम लिए, कॉपर है, उसमें स्टील है, आयरन ओर है, जितने भी आपने नाम लिए, इन सब की मुझे डिमांड आगे बढ़ती दिखाई देती है। पर इसमें सिर्फ मैंने आपके पिछले श्रोता को भी यही बोला था कि आप लंबी अवधि का 3 से 5 साल का नजरिया रखें और अच्छी कंपनी में जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसकी बुक वैल्यू अट्रैक्टिव है, उसमें निवेश करें, जिसकी पीई रेशियो बाकी के उससे कम है, प्रॉफिट मेकिंग है। सिलेक्शन ऑफ कंपनीज, समर जी और आपसे पहले सुनील जी थे, मैं बताना चाहूंगा सिलेक्शन ऑफ कंपनीज बहुत जरूरी है। आप सीधा एक सेक्टर अच्छा देख के और ब्लाइंडली उसको पिक नहीं कर सकते, या तो अगर खुद कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस खुद करिए, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से बहुत अच्छी सी कंपनी का सिलेक्शन करके आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें जी। और थाने से हमारे श्रोता गुरुनाथ जी मौजूद हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार, कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है जो हमारे अपने जो शेयर मार्केट के जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ मैं सर अभी। बट ये जो राकेश झुंझुनवाला, उनकी डेथ हो चुकी है, और ये जो वॉरेन बफेट जी सर, इनके पास ऐसी कौन सी टेक्निक है, क्योंकि इनका नेटवर्थ बताया गया है अभी राकेश झुंझुनवाला का 40-50 हजार करोड़ का जी। तो सर ये उन्होंने मतलब कभी इनके जीवन में मतलब सक्सेस और फेलियर का कोई दौर आया ही नहीं है, और ये सब सारा पैसा ये लोग इन्वेस्ट करके ही मतलब अचीव किया है। थैंक यू। गुरुनाथ जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और हम बोलते हैं उसको दिस इज $1 बिलियन क्वेश्चन। पहली बात तो आपने जो बाद में बात कही, पहले में उस पर, ऐसा नहीं है कि इनके दौर में कभी बुरा, इनकी जिंदगी में कभी बुरा वक्त नहीं आया। वॉरेन बुफे का लें आपने, या झुंझुनवाला साहब का, स्वर्गीय झुंझुनवाला साहब की बात करी, और भी निवेशक हैं जो, देखिए इनमें और बाकियों में फर्क क्या है, मैं आपको मंत्र दे देता हूं। अभी मैंने आपसे कुछ श्रोता पहले एक बात कही थी कि निवेशक बन के आते हैं और वो ट्रेडर बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, निवेश से ट्रेडिंग में आ जाते हैं, उनको बाय सेल। इन लोगों ने क्या किया, अब हम इनकी बात करते हैं। आपने जिन 2 शख्सियत का नाम लिया, इन्होंने उसको मार्केट को स्टडी किया, उसमें से शेयर सिलेक्ट करके उसको लंबी अवधि के लिए रखा, और यही पेशेंस इनका मैजिक मंत्र है। अगर आप शेयर मार्केट में किसी तरह पेशेंस रखें और आपका कंपनी का सिलेक्शन अच्छा है,
मुझे नहीं लगता कि कभी बुरा दौर आएगा। हालांकि इन्होंने भी, क्योंकि आप जब 10 कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई 1-2 बीच में ब्लैक स्पॉट निकल आते हैं, ऐसा नहीं है। हाउ डू यू डिफाइन दिस अवधि? अवधि में देखिए, आप अगर अवधि की हम बात करें, और मैं अगर इन्होंने जो 2 शख्सियत का नाम लिया है, वॉरेन बुफे साहब के पास ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जो 20-20, 25-25 साल से पड़े हुए। झुनझुनवाला साहब के साथ मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात करने का कई बार मुझे मौका मिला, और उन्होंने भी जब शुरू किया था उनके पास कुछ शेयर ऐसे थे, एक उन्होंने टाइटन पे ट्रेड किया था मुझे याद है, और वो आप लगाइए कि उन्होंने 10-10, 15-15 साल वो रखे, और आप मानेंगे नहीं, कुछ शेयर तो ऐसे होते हैं 2 साल में 5-6 गुना हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है और आप में पेशेंस है, ये 2 मैं समझता हूं बहुत बेसिक नीड्स है शेयर मार्केट में, जो बस यही दोनों चीजों में लोग मात खा जाते हैं। उनमें पेशेंस नहीं होती, मैंने कहा कि इन्वेस्टर ट्रेडर बन जाता है, और दूसरा सिलेक्शन ऑफ कंपनीज अच्छा नहीं होता। तो गुरुनाथ जी, ये 2 मंत्र हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी में बुरा फेस नहीं आया, बुरा फेस आता है, तो कुल मिला के इन्होंने अच्छा पैसा उसमें बनाया। और चलते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वैध ऐप्स की स्वीकृत सूची जारी करेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर्स में केवल वैध ऐप्स ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध ऋण ऐप से संबंधित मुद्दों पर बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि रिजर्व बैंक ऐसे अवैध खातों की निगरानी करेगा जिनमें धन शोधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही वो निष्क्रिय गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी रद्द करेगा ताकि इनका दुरुपयोग रोका जा सके। Moving on, the US markets registered their first weekly gain in 4 weeks as investors went on a buying spree, shrugging off concerns about the economic outlook. So the Dow Jones Industrial Average jumped 2.7% during the week to end at 32,152. The S&P 500 climbed 3.6% to 4,067, and the Nasdaq Composite surged 4.1% to 12,112. The gains followed a sharp sell-off that began in mid-August, triggered by concerns about the impact of tighter monetary policies and signs of an economic slowdown in Europe and China. So what do you think, Sharad, will happen in the coming week? Will we have noticed the first weekly gain in 4 weeks? Yeah. So will that trend continue? And also, as you said, I'm linking it with India now. Will this momentum that we have of the markets jumping 1.7% during the week, will the two continue to see rosy days ahead? Well, since you started with the American markets, Rajesh, we have the Fed meeting later this month, and I think that the nervousness will set in on the market, so the volatility is going to be there. I mean, but the good thing, as I said, is that the Indian markets may or may not necessarily follow the trends of the American market. So when I said may or may not, earlier it was always they will follow the trend. So I think the decoupling of the Indian market has been a very welcome sign. So as far as India is concerned, we speak of both the markets together because they follow. The Indian market follows. But now I think from now onwards you'll have to probably formulate your capsules in a manner that you talk of American markets separately and the Indian market separately, because this is the new trend which is emerging, and a very healthy trend, I must say. So I think it's going to be volatile, and the Fed meeting will make markets nervous again. Same for India. Yes, same for India, absolutely. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, thank you. Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, domestic markets jump 1.7% during the week. RBI to prepare white list of legal apps, Center to ensure that only legal loan apps are hosted on App Store. And US stocks register their first weekly gain in 4 weeks. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.